عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کے پولیٹیکل سائنس میں دوسرا سبق بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت کا مطالعہ کریں گے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کا مفہوم، اہمیت اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل و خارجہ پالیسی کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ وہاں دیکھ سکتے ہیں مفہوم اور اہمیت، تو کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ دنیا کے تمام ممالک، وہ جو ہے ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر ہو یا پسماندہ ہو، وہ ایک بین الاقوامی نظام کا ایک حصہ ہے۔ ہر ملک کو دوسرے ملک پر جو ہے ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے، انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کوئی ملک یہ کہے گا کہ ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ سماج ہے اور سماج میں ہر حصہ جو ہے اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، تو ہر ایک کی ضرورت ہے، غرض ہے۔ ہر ملک جو ہے اپنے مرضی سے کسی گروپ میں شامل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور بین الاقوامی سیاست میں اپنے کردار سے متعلق فیصلہ کرتا ہے۔ اس طرح کے فیصلے نہایت غور و خوض کے بعد کیے جاتے ہیں۔ اس فکری نظام کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ ہر آزاد اور مقتدر ملک اپنی علیحدہ خارجہ پالیسی طے کرتا ہے۔ ملکوں کے باہمی تعلقات کے مطالعے میں خارجہ پالیسی جو ہے نہایت اہم ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی ملک کا مطالعہ کرنا ہو تو اس ملک کے دستور اور خارجہ پالیسی کو جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ سمجھیں گے نہیں تو سامنے والے ملک کا کیا رول ریگولیشن ہے ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہر ملک کی الگ الگ خارجہ پالیسی ہوتی ہے۔ قومی مفاد، 2 نمبر پر قومی مفاد اور خارجہ پالیسی میں قریبی تعلق ہوتا ہے۔ خارجہ پالیسی کے ذریعے قومی مفاد کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ قومی مفاد یعنی اپنے ملک کے آزادی اور سالمیت اور مقتدر حیثیت کے تحفظ کے لیے کی جانے والی تدابیریں ہیں۔ معاشی ترقی کے ذریعے طاقتور بننے کی کوششیں بھی قومی مفاد کا حصہ ہیں۔ قومی مفاد کے بارے میں غور و فکر کرنا اور فیصلہ لینا قومی مفاد کا تحفظ کہلاتا ہے۔ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد ہے۔ کمزور ملک کے لیے اپنی آزادی کی حفاظت اور دفع مشکل ہوتا ہے، اس لیے معاشی ترقی کو اہم جو ہے قومی مفاد مانا جاتا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ ہے قومی مفاد اور خارجہ پالیسی۔ دفع اور معاشی ترقی جیسے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے خارجہ پالیسی تشکیل دی جاتی ہے۔ قومی مفاد اگر مقصد ہے تو خارجہ پالیسی اس کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو دونوں میں قومی مفاد اگر مقصد ہے تو خارجہ پالیسی کیا ہے، اس کا حصول حاصل کرنا ہے۔ مختلف ملکوں کے مقاصد وقت اور حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسی لحاظ سے قومی مفادات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کی عکاسی خارجہ پالیسی میں ہوتی ہے، اس لیے خارجہ پالیسی تبدیل ہونے والی ہمیشہ رہتی ہے، متغیر ہوتی رہتی ہے۔ پھر ایک خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عوامل۔ تو آپ کی درسی کتاب میں سوال دیا ہوا ہے، ویب خاکہ دیا ہوا ہے، اس کے 5 پوائنٹ ہے۔ تو درمیان میں جو ہے خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عوامل دیا ہوا ہے، اس میں جو ہے آپ کو اس طرح سے دیا رہے گا، بیچ میں آپ الگ الگ لے دینا ہے۔ تو یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو اس کی جو ہے اہمیت سمجھنا چاہیے اور اس کی پڑھائی کرنی چاہیے۔ تو پہلا تو کیا ہے، ملک کا جغرافیائی میدان مفہوم، دوسرا جو ہے سیاسی نظام، تیسرا ہے معیشت، چوتھا ہے سیاسی
क़यादत और पांचवा है इंतज़ामी अवामी। तो वो वक्त खाका जो आपके दरसी किताब में मश्क में दिया हुआ है उसका वो जवाब हो सकता है। अब एग्जाम के लिए पांचों पॉइंट याद करना है, लेकिन आएंगे कोई चार, क्योंकि आधे आधे नंबर के लिए लेते हैं, ऐसे एक दो नंबर के लिए आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसकी आपको पढ़ाई करना लाजिम है। अब एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। पहला है मुल्क का जोग्राफिया महल वक़ूम। किसी मुल्क का रकबा, आबादी और जमीन की किस्म मुल्क को मुयस्सर साहिली इलाका, कुदरती वसाइल वगैरह अवामिल पर खाजा पॉलिसी का तयन किया जाता है। सियासी निज़ाम 2 नंबर पे देखो है, जमहूरी तर्ज के सियासी निज़ाम में पार्लियामेंट को खाजा पॉलिसी बनाने में अहम मुकाम हासिल होता है। पार्लियामेंट जो है बहस और मुबाहिसे के जरिए पड़ोसी ममालिक को मद्देनजर रखते हुए खारजा पॉलिसी तैयार करती है। तीसरा पॉइंट है मईशत। मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए दरामदार और बरामदार आलमी तिजारत जैसे अवामी खाजा पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं। माशी तौर पर मजबूत मुल्क अपनी खाजा पॉलिसी आज़ादा तैयार करते हैं। दरामद और बरामद किसे कहते हैं? देखो, जो चीज दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में आती है उसको दरामद कहते हैं, यानी इंपोर्ट कहते हैं। और हमारी जरूरत से ज्यादा कोई चीज है हम दूसरे मुल्क को दे देते हैं तो वो बरामद कहलाएगी, यानी एक्सपोर्ट कहलाएगी। फिर है सियासी क़यादत। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा, वज़ीर दफा, वज़ीर मालिया और वज़ीर दाखिला खारजा पॉलिसी की तश्कील में नुमाया किरदार अदा करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी ने खारजा पॉलिसी में नुमाया किरदार अदा किया है। फिर है पांचवा पॉइंट, इंतज़ामी अवामी। तो खारजा पॉलिसी की तैयारी में खारजा उमूर के वजीर, खारजा सेक्रेटरी, सफारतकार, अहदेदार वगैरह इंतज़ामी उमूर में शामिल होते हैं। खारजा पॉलिसी की तैयारी में नुमाया किरदार वज़ीर आज़म का होता है। किसका होता है? वज़ीर आज़म का होता है। मगर इंतज़ामी मिशनरी के जरिए इसका निफाज तजज़िया किया जाता है। खारजा पॉलिसी की तैयारी में कौमी सलामती के मुशीर भी अहम किरदार अदा करते हैं। फिर है इधर भारत की खारजा पॉलिसी। तो देखिए 1947 ईस्वी में भारत के 1947 ईस्वी में जो है हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, पता है आप सबको। तो आज़ादी के बाद भारत ने खारजा पॉलिसी की तश्कील शुरू की। दस्तूर में रहनुमा उसूलों की दफा 51 के मुताबिक भारत ने अपनी खारजा पॉलिसी बनाई। आप दरसी किताब में जो है सफा नंबर 68 पे देख सकते हो दफा 51। तो देखो क्या दिया है कि भारत के दस्तूर की दफा 51 क्या है? देखो, बैनुल अक़वामी अमन सलामती का क़याम, मुल्कों के माबैन मुंसिफाना और बावकार ताल्लुकात कायम करना, बैनुल अक़वामी मामलात में बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों का क्या करना है? एहतराम करना, और ट्रिब्यूनल साजिश की मदद से बैनुल अक़वामी तनाज़ुर को पुरअमन तरीके से हल करना। अब अगला है उसका फर्स्ट एक भारत की खारजा पॉलिसी के चंद मज़ीद मकासद। तो देखो, पड़ोसी ममालिक और दीगर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बरकरार रखते हुए अपने मुल्क की सलामती पर आंच न आए या आंच न आने देना, और मुल्क की जुग़राफ़ियाई सरहद की हिफाजत से समझौता न करना, भारत के इत्तेहाद और सालमियत की हिफाजत करना, दूसरे ममालिक में रहने वाले भारतीयों के मफादात की हिफाजत करना, ये जिम्मेदारी मुतालिका मुल्क में भारत का सफारत खाना अंजाम देता है। भारत की माशी तरक्की के लिए गैर ममालिक के साथ माशी और तिजारती ताल्लुकात कायम करना। आपको पता है कि हमारे मुल्क के कई अफराद बैरूनी ममालिक में बरसर रोजगार है, तिजारत की गर्ज से गए हुए हैं, लेकिन कभी आफत आ जाती है तो खारजा पॉलिसी जो अपनाई जाती है वहाँ से अपने लोगों को महफूज तरीके से निकालना, ये हिंदुस्तानी या भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको पता है अफगानिस्तान में जो आजकल चल रहा है मामला, वहाँ से महफूज तरीके से जो है वो निकाल कर लेकर आए हैं भारत में। तो ये जो है एक दूसरे का मुआहदा होता है, एक दूसरे से ताल्लुकात होते हैं। इस ताल्लुकात इस्तावर होने की वजह से वो चाहे तिजारती रहे या ये घूमने फिरने के लिए रहे, जिस तरह से भी माशी
सियासी एतबार से ताल्लुक है, ये सब का फायदा उसमें उठाया जाता है। अगला जो है भारत की खाद्य पॉलिसी का जायजा। तो देखो हम भारत की खाद्य पॉलिसी का जायजा 2 मरहलों में लेंगे। पहला मरहला आजादी के बाद से यानी सन 1947 ईस्वी से कब तक, सन 1990 ईस्वी तक, और दूसरा मरहला जो है सन 1991 ईस्वी से ताहाल अभी तक। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हम लोग तो समझ में आ जाएगी कि इब्तिदाई मरहला जो है वो क्या है। देखिए भारत की खाद्य पॉलिसी इब्तिदाई मरहला, उसके बारे में बात हो रही है। तो पंडित नेहरू ने इब्तिदाई खाद्य पॉलिसी तश्कील दी और नवाबाती निजाम की मुखालिफत की। उन्होंने आलमी आमन सलामती को तरजीह दी। खाद्य पॉलिसी पर 3 बातों का असर था: बगैर दबाव के बैनुल अक़वामी अमन कायम रखना, दूसरा है पाकिस्तान और चीन के खतरात को दरपेश रखना, और खुद कफील होने पर जोर देना। खुद कफील यानी खुद का काम खुद करना और किसी मदद के बगैर अपना काम जो है मुकम्मल करना, खुद कफील। तो हर कोई चाहता है कि मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी कार हो, मेरा अपना बंगला हो, मेरे अपनी जो है खुद की जायदाद हो, इस पर है। लेकिन दुनिया में जब हम आए हैं तो हमें अपनी दुनियावी बातों के साथ साथ आखिरत को भी संभालने की कोशिश करनी चाहिए। अगला फिर उसके बाद शुरुआती दौर में भारत ने खाद्य पॉलिसी के दौर में बरआज़म एशिया और दीगर ममालिक से ताल्लुकात, ताउन और तरक्की हासिल करते हुए अपनी आज़ादी का जो है तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की है। कुछ एफ्रो एशियाई ममालिक के सर्द जंग में जुड़ जाने की वजह से इलाके तरक्की की रफ्तार क्या हो गई थी, रुक सी गई थी। सर्द जंग के खात्मे के बाद ये ममालिक नावाबस्ता तहरीक में शामिल हुए, न न्यूट्रल रहे, न इधर न उधर। फिर अमन, आज़ादी और अमन वाबस्ती इस तंजीम के बुनियादी उसूल बन गए। भारत के अपने पड़ोसी यानी कौन सा मुल्क है पड़ोसी मुल्क, पाकिस्तान से जो है 3 जंगें हुई, सन 1947 ईस्वी में, सन 1965 ईस्वी में और सन 1971 ईस्वी में। तीसरी जंग में बांग्लादेश नामी आजाद मुल्क वजूद में आया। 1970 ईस्वी की दहाई में भारत जुनूबी एशिया का जो है एक मजबूत तरीन मुल्क बनकर उभरा था और 1974 ईस्वी में एटमी तजुर्बे के जरिए मजबूत इलाकाई शक्ल इख्तियार की गई और 1980 ईस्वी के बाद से जुनूब एशियाई ममालिक में जो बाहमी ताउन के फरोग के लिए सार्क का कायम अमल में आया। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका सार्क का फुल फॉर्म है। भारत ने चीन और अमेरिका से लेन देन और ताल्लुकात का आगाज किया। ठीक है, अभी पहला मरहला सन 1947 ईस्वी था, सन 1990 ईस्वी। तो भारत ने नावाबस्ता तहरीक को अपना कर लेकर दोनों आलमी ताकतों रूस और अमेरिका, उस जमाने में रूस और अमेरिका ये अपने आप को जो सुपर पावर मानते थे, लेकिन बाद में रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ताजिकिस्तान, अरबकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे इलाके वजूद में आए और रूस जो है मुंतशिर हो गए, बिखर गए। अब जो है सुपर पावर मुल्क कौन सा है, अमेरिका है। तो भारत ने जो है नावाबस्ता तहरीक को अपना कर दोनों आलमी ताकतों रूस और अमेरिका से ताउन हासिल करने में कामयाबी हासिल की। सोवियत यूनियन यानी ये रूस, फ्रांस और जर्मनी ने भारत के मजबूत दफाई निजाम के लिए टेक्नोलॉजी फराहम की। उस दौर में जो भारत को पाकिस्तान चीन से जंग करना पड़ी। 1974 ईस्वी में भारत ने एटमी तजुर्बा करके एटमी ताकत बनने का जो है ऐलान कर दिया था। फिर भारत की खाद्य पॉलिसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो किरदार क्या है, जो उनकी खिदमत क्या है, देखिए उनका मौकूफ था किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि हमें आलमी या बैनुल अक़वामी वाक़ियात का आज़ादाना तज्ज़िया करना चाहिए। और उन्होंने क़याम अमन की पॉलिसी पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल किया। दूसरा जो है दूसरा मरहला 1991 ईस्वी से लेकर आज तक दूसरे मरहले में भारत की खाद्य पॉलिसी मजीद वसी और तेज हुई।
सर जैन की खात्मे पर मैशत जो है या तिजारत और टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए आलमगीरियत का सहारा लेना पड़ा और 1991 ईस्वी के बाद भारत ने आज़ादाना मैशत पर जोर दिया, पड़ोसियों से तिजारत में इजाफा किया और माशी तरक्की तेज हुई। जो रुक सी गई थी ना वो अब तेज हो गई। और 1990 ईस्वी की दहाई के बाद सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह से जो है भारत के माशी ताल्लुकात बने। इसराइल, जापान, चीन और यूरोपी इसराइल, जापान, चीन और यूरोपीय यूनियन से कारोबारी लेनदेन में इजाफा हुआ और ब्रिक्स और G20 जैसी तंजीमों में भारत शामिल हुआ। ब्रिक्स कहेंगे, ब्रिक्स का फुल फॉर्म है B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। देखो ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स का एक फुल फॉर्म। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में मजबूती आई और बाहिमी एतबार में इजाफा हुआ। एटमी पॉलिसी जो है भारत की खाद्य पॉलिसी का अहम हिस्सा बन गया। भारत ने आज़ादी के बाद जो है जौहरी तवानाई कमीशन और जौहरी तवानाई महकमा जो है कायम किया। इसके पहले सदर जो है उनका नाम था डॉक्टर होमी भाभा। तो जौहरी प्रोग्राम का मकसद तवानाई और फौजी सलाहियत को फरोग देना था। 1974 ईस्वी में भारत ने पहला तजुर्बा किया और 1998 ईस्वी में दूसरा, और इस तरह जौहरी इसरार जो है वो तैयार कर लिया। इसके अलावा जौहरी इसरार बरदार लॉन्चर भी तैयार कर लिए, जिसके बाद फिजाइया और बहरिया को ये हथियार फराहम करके ताकत दी गई और इस तरह भारत एक जौहरी ताकत का जो है हामी मुल्क बनने के साथ साथ एक जिम्मेदार मुल्क का किरदार भी निभाता आ रहा है और तरक इस्लाम, आलमी अमन और सलामती की कोशिशें भी भरपूर अंदाज से कर रहा है। और इस तरह से जो है ये सबक खत्म हो जाता है। आपको इसके ऊपर पढ़ना है, इसके सवाल देखना है, मश्क के सवाल के जवाब अपनी बयान में लिखना है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।